أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. قال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. حضرت بہز ابن حکیم اپنے باپ سے اور حضرت بہز کے دادا سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر کے سلسلے میں
قال انتم تتمون 70 امہ، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ 70 امتوں کے اتمام کرنے والے ہو، وانتم خیرها، اور تم ان میں سے سب سے بہتر، واکرمها، اور قدر والے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اس کو ترمذی نے روایت کی ہے اور ابن ماجہ نے اور دارمی نے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث میں حضرت بحث بن حکیم نے اپنے باپ اور انہوں نے اپنے باپ یعنی حضرت بحث کے دادا سے حدیث کو روایت کیا ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کے تفسیر کے سلسلے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو تمام امتوں میں سب سے بہتر امت بنایا، اور اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی بنایا ہے، اسی طرح سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں سب سے بہتر امت بنایا۔ اس کی توضیح اس حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس حدیث سے متعلق ہے اس لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو تمام امتوں میں سب سے بہتر قرار دیا، اس کی جو وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی فتنہ فساد اور بے دینی کا غلبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا، اور پھر اس نبی نے آ کر اس دین میں اور اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دی۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن برائیاں اب بھی پھیل رہی ہے، لوگ اسلام اور اہل اسلام سے آج بھی کوسوں دور ہیں اور دین و شریعت سے دور ہیں۔ اس دوری کو مٹانے کے لیے اور انسان کو راہ راست کی ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ذمہ داری دی، اور اس امت کے سب سے بہترین امت ہونے کی جو فضیلت بیان کی ہے اور جو سبب بیان کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین خاصیتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں میں بہتر امت قرار دیا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم 70 امتوں کی اتمام کرنے والے ہو، یعنی جس طرح سے نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اسی طرح سے امت بھی اسی امت پر ختم ہے، اب ان کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے۔ اور یہ 70 کے قید علماء محدثین فرماتے ہیں کہ 70 یہ کثرت تعداد کو بیان کرنے کے لیے ہے، یہ حد تعداد بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ امت جو اس دنیا میں آئے ہیں ان تمام امتوں میں یہ جو امت ہے وہ تمام امتوں کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان تمام امتوں میں اس امت سے پہلے جتنے بھی امت آئے ان تمام امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے باعزت اور قدر والے امت ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا جو نسب اور جو سلسلہ قائم کیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ اللہ کے نزدیک سب سے عزیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو بھی سارے امتوں میں سب سے بہتر ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اور اب ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو برقرار رکھیں اور ہم اپنے آپ کو بہترین امت میں اپنے آپ کو ڈھال کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً وہ انعامات جو ہمارے لیے وعدے کیے ہیں اس سے ہم سب کو نوازیں گے۔ یہ حدیث کی مختصر ترجمہ اور توضیح ہے۔ میں آخر میں اپنے ان تمام بچیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے مشکات شریف کی حدیثیں ختم کی ہیں، آپ نے وہ تمام اوامر اور نواہی جس کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ بھی آپ نے پڑھا، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو بھی پڑھا ہے، معاملات کے سلسلے میں بھی پڑھا ہے، نکاح و طلاق کے سلسلے میں بھی پڑھا ہے، اولاد اور اپنے ماں باپ کے خدمت اور ماں باپ کی عزت و احترام کے سلسلے میں بھی پڑھا ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کی کوشش کریں، اور میں اپنی تمام بچیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے پورے تندہی کے ساتھ، پوری محنت اور جذبے کے ساتھ
آج اس کتاب کو مکمل کیا ہے اس پر عمل کی کوشش کریں اور اس تعلیم کو اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. آپ جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، دین کی خدمت کرنا اور دین کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا اپنا شعار، اپنا فریضہ سمجھیں. اور ان کے گارجن بھی چونکہ یہاں موجود ہیں، میں ان گارجنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ کے گھر میں جو اولاد اس کتاب کو ختم کر کے پہنچ رہی ہے وہ کوئی معمولی نہیں. اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی فضیلت سے نوازا ہے اور یقیناً آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہو، آپ لوگوں کی جذبہ کی وجہ سے ہو یہ بچیاں یہاں تک پہنچی ہے. لیکن اس کے علم کی حفاظت کرنا اور اس کے علم کی قدر کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہے. اتنا پڑھانے کے باوجود بھی اگر آپ نے اس کے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا یا آپ لوگوں نے دنیا کے لالچ میں اپنی اولادوں کی شادیاں ایسے گھرانوں میں کر دیا جو دین سے کوسوں دور ہے، تو یہ دین اور یہ پڑھنا اور یہ کتابیں سب بیکار ہو جائیں گی. اگر آپ اس دین کو اور اس تعلیم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان بچیوں کا رشتہ ایسے گھرانوں میں کریں جن کا تعلق دین سے ہو، دینداری سے ہو اور جو اس کے دین کی قدر کر سکے. اور میں اپنی بچیوں سے، چونکہ میں اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں، یہی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی عزت کو، اپنے استاد کی عزت کو اور اپنے اس مدرسے کی عزت کو ہمیشہ برقرار اور بحال رکھیں گے. اور میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ان بچیوں کا جامعہ ریاض الصالحات سے فارغ ہو جانا یہی ایک ایسا رول ماڈل ہے کہ لوگ نام لیں گے کہ یہ بچیاں فلاں ادارے سے فارغ ہیں. ان کی تعلیم کی بنیاد پر، ان کی تربیت کی بنیاد پر میں انہی امید اور انہی خواہشات کے ساتھ میں حضرت مولانا اسرائیل صاحب مدثر اللہ العالی سے گزارش کروں گا کہ مزید جو توضیحات اور تشریحات ہیں یا جو بھی کچھ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں بیان کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. میرا علماء کرام اور عزیزہ طالبات، ابھی مشکوٰۃ شریف کا درس ختم ہوا، آخری حدیث پڑھی گئی. یہ مشکوٰۃ شریف کیا ہے؟ ہم لوگ سیاہ سکتہ سنتے ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، لیکن ہم لوگ مشکوٰۃ کی قدر اس معنی کا بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ ساری کتابیں وہ سیاہ سکتہ مشکوٰۃ کے اندر رکھیں. جو 3 فصل مقرر کیا ہے، فصل اول میں تو متفق علیہ سے حدیث، پھر دوسری فصل میں سنن کی حدیث ہے، پھر آثار ہیں صحابہ کرام. یہ اتنی جامع کتاب ہے مشکوٰۃ شریف کہ مشکوٰۃ شریف پڑھ لینے کے بعد ہی آپ اس کو عالمہ کہنے لگتے. اب وہ اگر نہ بھی پڑھے بخاری شریف تو وہ بچیاں کہہ سکتی ہے کہ ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے، فصل اول میں بخاری کی حدیث ہے. وہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے مسلم شریف پڑھی ہے، فصل اول میں مسلم شریف کی حدیث ہے. اور ابن ماجہ ترمذی ہے، وہ داؤد کہہ سکتی ہے کہ دوسری فصل میں سب سنن کی حدیث ہے. یہ عجیب اور غریب اور بہت ہی جامع کتاب ہے. لیکن ایک بات میں علماء کرام سے بھی اور جو طالبات نے ختم کیا یاد کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ حدیث اگر صرف ہم حدیث پڑھ کے اور ترجمہ دیکھ لیں گے، یہ آپ کو اردو کی کتابوں میں یہ باتیں مل جائیں گی. لیکن مشکوٰۃ شریف کے شروع میں ایک مقدمہ ہے، مقدمہ مشکوٰۃ. جب تک علماء کرام مقدمہ مشکوٰۃ پر غور فکر نہیں کریں گے اور اس پر نظر غائب نہیں ڈالیں گے تو وہ حدیث کی وہ خوبی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر طالبات اگر نہیں کر سکتی ہیں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں ذہن کے مطابق ہے. لیکن علماء کرام کو چاہیے کہ مقدمہ مشکوٰۃ کو
इसकी एक दूसरी शक्ल नुखबतुल फिक्र भी है। तो मुकदमे मिशकात को भी देखें, इसी की शरह में मौलाना हबीब रहमान साहब ने बड़ा एहसान कर दिया है मज़ार हर जदीद में, और ये उसमें हदीस को समझें, मरफू क्या है, मुरसल क्या है, मक्तू क्या है, मरफू क्या है, ये इन चीज़ों को समझें, हदीस की खूबियों को समझें। हदीसों में इतनी बारीकी है, हम लोगों ने गौर नहीं किया है, इसलिए उसकी वो अहमियत समझ में नहीं आती है। इसलिए उलमाए किराम को चाहिए कि क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 30 साल 40 साल 45 साल पहले, उसके बाद भुला दिया, तो उर्दू किताब देख करके एक दो हदीसें हम लोगों को याद हो जाती है या तर्जुमा देख लेते हैं। लेकिन हम लोगों पर ज़रूरी है कि चाहिए हम लोगों को कि कभी कभी मुकद्दमे मिशकात को देखें। मैं इस चीज़ की दावत दे रहा हूँ कि आलिम हो जाने के बाद बहुत से लोगों को मालूम है कि मरफू किसको कहते हैं, हदीस फलाना ने मरफूअन जिक्र किया है, फलाना ने मुरसलन जिक्र किया है, तो यह हदीस मक्तू है, तो फलाना रावी जो है वो मुदल्लिस है। तो ये सुन करके हम लोग ऐसे रह जाते हैं भाई किसी ज़माने में हम लोग पढ़ते थे, अब तो वो सब भूल भुला गए। जी नहीं, उसको ताज़ा रखना चाहिए, हम मुकद्दमे मिशकात को भी देखना चाहिए, और रावियों के हालात को भी जाना। सनद और मतन का ही नाम है, मतन हम लोगों ने पढ़ लिया, सनद की तरफ तवज्जो कम देते हैं। हम अपने बारे में, हम लोग उलमा के बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग मतन को बहुत देखते हैं, लेकिन सनद की तरफ तवज्जो कम होती है कि किस रावी ने इसको जिक्र किया, उस सहाबी के बारे में, उस ताबई के बारे में, उस ताबईन के बारे में। उनके हालात को देखने से मोहब्बत बढ़ती है कि आप उनकी जब हालात पढ़ेंगे तो एक हदीस उन्होंने किस तरह से हासिल की, कितने लंबे लंबे असफार किए, एक हदीस हासिल करने के लिए एक एक महीना का सफ़र किया, ऊँट की पीठ पर बैठकर, और एक हदीस सुनकर वापस आ गए। इतनी मोटी किताब उन लोगों के पास नहीं थी, एक एक हदीस जाके लाते थे, एक एक महीना सफ़र करके, 15 दिन 20 दिन सफ़र करके, फिर लिखते थे, जमा करते थे। तो इस तरह से हदीसों का ज़ख़ीरा जमा हो गया जो हमारे सामने है। और इस किताब में जो आखिर में आपने पढ़ा, ये किताबुल मनाक़िब ही चल रहा है, किताबुल मनाक़िब है। आज मनाक़िब में कुरैशियों की मनक़बत है, और मैं मुहाजिरीन के हैं, अंसार के हैं, एक एक सहाबी के नाम ले ले करके आप फला मनक़बत के फला सहाबी को मनक़ब है, फला तारीफ़ है, लेकिन आखिर में पूरी उम्मत की तारीफ़ है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, पूरी उम्मत की फजीलत बयान कर दी गई। और आप देखिए इससे पहले भी कितनी हदीसें हैं जिसमें इस उम्मत की बड़ी फजीलत बयान की गई। उसमें एक बहुत बड़ी फजीलत जो है, जो आखिरी हदीस में है, जो कुरान पाक की आयत के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का इरशाद फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस आयत की तफसीर बयान करने से मौलाना ने फरमाया, उसके ज़ेल में ये फरमाया। अच्छा, एक आयत के बारे में बात आए के बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, ये जो सेगे हैं ये सब जुमला खबरिया है। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, ये सब जुमला फेलिया है, खबरिया है, सब खबरिया है। जो तालिबात हैं, उलमा है, खबरिया ईसाइया सबको जानते ही हैं, खबर है। लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जुमला खबरिया की तो शक्ल में है, लेकिन इसको जुमला इंशाइया समझना कि तामुरून बिल मारूफ, तुम लोग अच्छाई का हुक्म करते हो, ये तर्जमा करते हैं ना, तर्जमा ये करो कि तुम लोग अच्छाई का हुक्म करो। बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि इंशा लो, आप बुराई से रोको। हाँ, अमर का से मन लाओ, क्या कि एक खबरिया को हम सब मुफस्सिरीन के बारे में बात कि इसको इंशा के माने में लो। आप कुंतुम जो है, तो कुंतुम अल्लाह की नजर में खाएंगे, और आप अंतुम हो, तुम लोग अंतुम खैर उम्मतिन,
अगर खाली कुंतुम को ये समझते रहेंगे कुंतुम खैर पहले तुम थे तो पारीना हो गया नहीं, और कुंतुम को अंतुम के माने में करके कहा कि तुम लोग अभी भी खैर उम्मत हो। कुंतुम ही सिर्फ नहीं है बल्कि तुम लोग अभी भी अंतुम खैर उम्मत, तुम लोग अभी भी खैर उम्मत में हो, अभी भी बेहतर उम्मत हो। अब क़यामत तक तुम बेहतर उम्मत रहोगे, तुम्हारी खैरियत खत्म नहीं हो गई है और सबसे अकरम भी हो और सबसे अखैर भी हो। खैर जो है ना, खैर ये इसमें तफसील कैसे रहा है, अकरम कैसे अखैर, तो खैर अखैर के माने में सबसे, इसमें तफसील जब होता है तो किसी के मुकाबले में इसमें ज़्यादती का माना होता है, तो बाकी तमाम उम्म पर तुम फजीलत रखते हो, इसलिए तुम अखैर हो, सबसे बेहतर उम्मत हो। और बेहतर उम्मत की वजह जो है, बेहतर उम्मत की बेहतराई की वजह यह है कि तुम्हारा काम ही है कि लोगों को हिदायत का रास्ता बताना। जब कहीं बुराई फसाद खराबी नजर आए उसको रोकना। अगर इस काम को नहीं किया तो एजा फाता शर्त फातल मशरूत। आपने जब ये खैर की जो वजह बताई, क्यों तुम खैर उम्मत हो, इसलिए खैर उम्मत हो कि तुम ये काम करते हो और नहीं करते हो तो करो ताकि खैर रहोगे। और उस काम का नहीं करने की वजह से इस खैर उम्मत की पूरी दुनिया में खैर नहीं, इस खैर उम्मत की खैरियत पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है, इसका खैर कहीं नहीं है। इसलिए कि खैरियत की जो वजूहात है उसको हम लोगों ने तर्क कर दिया, तो शर्त जब फौत हो गई है तो अब मशरूत भी फौत हो रही है। अल्लाह ताला ने वो मकाम दे दिया, अगर कर सकते तो तुम ही कर सकते हो, अब तुम नहीं कर सकते तो वो जगह खाली रह जाएगी। अगर चाहेंगे तो हम ही इसी उम्मत में पैदा करेंगे, तो उम्मत अब नहीं आएगी। क्यों? हम तुम कतुमना सभी न उम्मतन, इसलिए बहुत सारी जमातें, पूरी जमातें, जैसे मौलाना फरमाया कि कसरत के माने में है, और अगर कोई 70 ही ले तो बड़ी बड़ी जमातें ले ले, इसमें सारी दुनिया की उम्मतें आ गई, उस सब का तुम ततीमा हो, सबका तुम खातिम हो, सबके आखिर में तुम आए हो, तुम्हारे बाद अब कोई नहीं आएगा, अब तुम ही सबसे आला, सबसे बेहतर और अरफम तुम ही हो। ये आखिर में ये बता करके ये हदीस जो सबसे आखिर में जिक्र किया है, तो मिशकात शरीफ या कुरान पाक की भी कुरान पाक पढ़िएगा तो जो जोड़ है ना आयतों को, एक आयत के दूसरे थानवी रमज़ान ने जो लिखा है, वाकई आप में हैरान रह जाएगा कि दूसरे जोड़ है, ये आखिर में क्यों लाया, शुरू में क्यों लाया, ऐसे क्यों किया, इसके बाद में क्या जोड़ है। तो ये आखिर में जो ये हदीस आई है सबसे आखिर में, उसमें बहुत से बुजुर्गों ने लिखा कि इससे पहले भी तो क्योंकि मनकबत की बात है तो कोई भी हदीस आ सकती थी, लेकिन ये आयत तुम खैर उम्मतों वाली आयत के सिलसिले में जो हदीस जिक्र की गई है बादल हकीम की, सबसे इसमें यह है कि किताब ख़त्म कर रहे हो, साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी महसूस करते हुए जाओ। सबसे आखिर में कि ख़त्म किताब नहीं हो गई, अब तुम्हारे पर जिम्मेदारी आ गई। इस जिम्मेदारी को बताने के लिए ही सबसे आखिर में ये किताब इस हदीस को जिक्र किया गया। दूसरी एक ख़ास बात यह है, जिन बच्चियों ने भी ख़त्म किया उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आपके पास अगर किताब मिशकात शरीफ नहीं है, अपनी जाती तो जाती ज़रूर खरीदिए। हमारे से सबकी जाती है, बड़ी खुशी की बात है, सबकी जाती है, सबकी जाती है। तो जिस तरह से आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं उसी तरह से वक्त निकाल करके हदीस की भी तिलावत। हम लोग जिससे फारिग हो रहे थे तो अमीरुल मोमिनीन की हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी नौरल्ला ने फरमाया था कि बच्चों, का खास बच्चों जिस तरह तुम लोग कुरान पाक की तिलावत करते हो, खुदा के वास्ते हदीस पाक की तिलावत भी उसी तरह से करते हो, हदीस पाक भी पढ़ते रहें। और नहीं तो कैसे तर्जुमा तशरीह कुछ नहीं कर सकते हो तो इबारत पढ़ते रहो, इबारत जो तुम पढ़ के आए हो इबारत रोज़ाना पढ़ा करो। एक दिन आकर रख दिया, बहुत याद, मुझे भी बहुत याद आ रहा था मौलाना सलमान साहब से मैंने मुश्किल शरीफ पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब हदीस नेमत पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिस्मिल्लाह से लेकर तम्मत के ता तक मिशकात की मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक भी हदीस छूटी नहीं है।
कभी एक सबक भी नाराज नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने सेहत भी अता फरमाई थी और तंदुरुस्ती भी अता फरमाई, मौका भी दिया, और कभी एक सबक भी नाराज नहीं हुआ। और अल्लाह ने जो आदमी कदर करता है तो बरकत होती है। तो ऐसे हमको पता है कि हदीस है, कोई लड़का हदीस पढ़ रहा है तो उर्दू सफ़ा पढ़ रहा है और उसके बाद मौलाना बयान करते हैं। तो मौलाना जब बयान करते लड़के आके बैठ जाए, और जब कोई लड़का हदीस पढ़ने लगे तो छुपने खड़ने के लड़के चले जाए। तो मौलाना सलमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रो कर कहा कि तुम कैसे बदनसीब बच्चे हो कि जब मेरी अपने जोर से कहा कि नापाक और गंदी ज़बान से जो तशरीहात में गलती है तो वो तो तवाज़ु था, तो तुम लोग आकर बैठ जाते हो हमारे होकर। जब आका तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कलिमात पढ़े जाते हैं तो सुखाने का तकाजा हो जाता है, तो तुमको कंकाना का तकाजा होता है। थकावट दूर करने के लिए बाहर चले जाते हैं। वो रो के कहा तो लड़के सब रो दिए और फिर कोई नहीं निकला। ये हदीस भी बड़े वजू के साथ आज जहाँ तक 1, 2, 5, 10 हदीस हो सके पढ़े, ये बातें हुई। और मैं मौलाना रिजवानुल्लाह साहब बहुत बरकत उनका शुक्रिया किस तरह अदा करूँ कि इन्होंने इन पूरे आशुभ हालात में ऐसी जगहों पर ऐसा माहौल कायम किया। आप जगह को भी देखिए और माहौल को भी देखिए, इन हालात में ऐसे माहौल को इन्होंने बरकरार रखा है। तो खुदा की आज लग रहा है कि हम लोग सहारनपुर या किसी मिशकात के दर्शक हम बैठे हुए, इसलिए कि हम लोग भी फारिग होने के बाद 40-42 साल हो गए, इस तरह मिशका सामने लेकर बैठने का मौका नहीं मिला था। आज मौलाना रिजवानुल्लाह साहब ने मौका दिया कि सामने मिशका शरीफ है, हम लोग बात कर रहे हैं। और सवाब अजर जो है वो बकदर मशक्क़त, मौलाना पहले जिक्र किया लॉकडाउन के ज़माने में कि मशक्क़तों के साथ शुभ शुभा करके इन्होंने पढ़ाया, और बुखारा और समर्थन की तारीख याद दिला दी। पहाड़ के खोह में जाकर कब्र खोद के कब्र के लिए जनाजा ले जा रहा दफन करने के लिए, जनाजा नहीं है, और कब्र ऊपर से कब्र बनाया और अंदर बैठा के एक उस्ताद और 3-4 बच्चे वहाँ या तो हिफ्ज़ करवा रहे हैं या वहाँ पर हदीस दर्स दे रहे हैं, अपने पास समझा रहे हैं, बुखारा समर्थन हो रहा है छुप छुपा करके। जब वो आज़ाद हुआ, पूरा मुल्क जब आज़ाद हुआ तो वो कजाकिस्तान वगैरह जो बना तो बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े हाफिज निकले, बड़े बड़े फ़कीर निकले। उस तरह से छुप छुपा करके उन्होंने वो तारीख याद दिला दी कि आपके यहाँ इसको दर्स को हदीस के दर्स को जिंदा रखा। और पूरी फिजा में काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेगा आपको? आपको ये मंजर कहाँ मिलेगा? इसको इन्होंने जिंदा रखा। और मज़ीद मशक्क़त की है। आप इस तरह से टीले के शेड के नीचे बैठे हुए हैं, ये मौसम कभी गर्मी का होता है, कोई ठंडे का होता है, कोई बरसात का होता है। अभी थोड़ी देर बैठे हैं तो हम लोग को गर्मी महसूस हो रही है। अब मौलाना साल भर बैठ कर किसी में पढ़ाते हैं, बच्चियाँ साल भर इसी बैठ कर पढ़ती हैं, तो अजर जहाँ बहुत है वहाँ पर ये अजर बकदर मशक्क़त भी बढ़ जाएगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये, क्योंकि इंसान नाकाम और कमज़ोर है, और वो उस अजर को लेने के लिए ये मशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कमज़ोर हैं। तो अल्लाह ताला इसको हालात को बदल दे और खुशहाली दे दे और अजर में कमी ना करवाए। अल्लाह ताला कादिर में कर सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु यु'ती। कि देखिए अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है, हकीम है, जिसको जो चाहता है देता है। तो दुनिया जो है अल्लाह ताला किसी को भी अता फरमा देते हैं, दोस्त हो या दुश्मन हो। अपने नबियों को भी दे दिया दुनिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, दाऊद अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ी बड़ी बादशाहत अता फरमा दे। आज दुश्मनों को भी दे दिया, नमरूद, कारून, सद्दाद, हामान, फिरौन, कौन कौन है काफी दौलत के मालिक।
सबको दे दिया, दोस्तों को दे दिया, दुश्मनों को दिया। लेकिन कोई कह सकता है कि इल्म दीन, आप दीन की समझ और अपनी पहचान और अपनी मार्फत किसी दुश्मन को दिया हो? ये दीन की समझ तो बस उसी को अल्लाह ताला देता है जिससे अल्लाह ताला को बहुत प्यार होता है। अल्लाह ताला जिसको अपना बहुत महबूब समझते हैं, जिसको बहुत अपना समझते हैं, मैं युरिदुल्लाह बिल खैर, जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह ताला उसको भलाई का इरादा कर लिया तो जहन्नम में क्यों डालेगा? अभी सुना आपने? अगर यही मकसद होता तो तुम मांगो हमसे, अगर हमको देना नहीं होता तो तुम मंगवाते किसी लिए? हम मजाक करेंगे तुम्हारे साथ क्या? तुम मांगो, देंगे। तो हम ये तुमको दे रहे हैं, अल्लाह ताला अपने महबूबों को अता फरमाते हैं। तो जो इनसे लगे हुए हैं, वो उलमा हो या तालिबान हो या तालिबात हो या इनके मुआविनीन हैं, ये सब ऐसे हैं कि सब अल्लाह ताला के महबूब हैं। अल्लाह ताला ने आपको चाहा है, इसलिए यहाँ बुलाया है। दुनिया के रंग रंगियों को देख करके कभी नाशुक्री का पहलू नहीं अख्तियार करना चाहिए कि उनको अल्लाह ने वैसा दे दिया वैसा दिया। जिस बात में है, अल्लाह ताला ने जिसको कुरान का इल्म दिया, उसने किसी दूसरे की दौलत, दुनिया की दौलत को देख कर कह दिया कि उसको हमसे बेहतर चीज़ मिल गई, उन्हें बहुत बड़ी नियामत की, नाकदरी की। तो अल्लाह ताला ने जितनी बड़ी नियामत आपको अता फरमाई है, उतनी बड़ी नियामत और किसी को नहीं अता फरमाई। वो सब दुनिया में ख़त्म हो जाने वाली है और ये लाजवाल नियामत है, हमेशा रहने वाली नियामत है। हम जिस इदारे में अभी बैठे हुए हैं, इस इदारे समझे रूहानी निस्बत हज़रत मौलाना मोहम्मद बदरुद्दीन साहब कासमी, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को अनवारा से भर दे, अल्लाह ताला उनकी तरक्की दर्जा अता फरमाए। उनकी जो एक फिक्र थी, हम लोगों ने होशमंदी की हालत में देखा है, मौलाना से मुलाकातें की हैं, जलसे में भी मौलाना से मुलाकात हुई है, बीमार रहते उसको कभी हम लोग आते थे मौलाना से मिलने के लिए। उनकी बड़ी फिक्र थी कि इस इलाके में सुन्नत जारी हो जाए और बिदअत खत्म हो जाए। एक अंदर की फिक्र थी, लेकिन जब फिक्र इखलास के साथ होती है तो अल्लाह ताला उसको कबूल भी फरमा लेते हैं। मौलाना की ये मुखलिसाना फिक्र थी, तो अल्लाह ताला ने उसी घर में उनकी फिक्र को कामयाब करने के लिए, जिंदा करने के लिए उनकी औलाद को ही उसकी जगह पर कायम कर दिया। कहते हैं कि बाप का इल्म करने बेटे को अकबर हो, क्या बेटा मेरा से फिक्र क्यों करो? अगर बाप का इल्म और बाप की फिक्र बेटा लेके नहीं चले तो सही वो खलफ नहीं हुआ तो खल्फ हो जाएगा। तो उनकी फिक्र को लेकर मौलाना रिजवानुल्लाह साहब चल रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, अली बातें शुरू करवा करके अली मिस्का शरीफ तक लगा दिया। अब बच्चियाँ पढ़ के यहाँ से जा रही हैं, तो मौलाना ने जो नसीहत करने की थी बच्चों को नसीहत की। बस मेरा यही कहना है कि उन किताबों को आप उन हदीसों को घर में जाकर भी पढ़िए और देखिए, जहाँ समझ में नहीं आए फिर जानने वाले से या अपने उस्ताद से पूछिए और अपने तक महदूद रखने की कोशिश न कीजिए। इसलिए कि आखिरी हदीस में जो आयत आई है उसमें इन चीज़ों को मना किया है, बल्कि दूसरे तक पहुंचाइए। एक जिम्मेदारी दी है। आखिरी हदीस का मतलब ये है कि अब यहाँ से आप लोग जा रहे हैं, अब किताब मेरी ख़त्म हो रही है, एक जिम्मेदारी लेकर के जाओ, अच्छाई का हुक्म करो। अच्छाई का हुक्म कैसे करेगा आदमी? जब अच्छाई और बुराई को समझेगा। जब तो बोला सब अच्छी बातें बताओ, अच्छी बातें बताओ, हमको मालूम ही नहीं कि अच्छी बात किसको कहते हैं, अब बुरी बातों से रोको, मालूम नहीं बुरी बात किसको कहते हैं। अपने घर की इस्लाह, हमें आसनसोल में एक कहा कि आप लोग इतना जो बयान करते हैं तो अल्लाह के नाम तो सही नहीं ले रहे हैं। अल्लाह में जो लान के ऊपर जो खड़ा है, आमतौर पर आसनसोल में हम फोटो सुना है बस अल्लाह की तो लाम पर जबर पड़ गई, तो खड़ा है उसको अल्लाह कहो। तो अल्लाह का लफ्ज़ हमने अपने घर में अपने बच्चों को नहीं सिखाया, माँ बाप को अल्लाह कहना नहीं सिखाया। वो अल्लाह अल्लाह के बोल के चले गया तो मर गया, अल्लाह का नाम सही नहीं ले सकता। हाँ यार, हम लोग का दुमका में
में अली को या से बदल जाता है तो अल्लाह को नहीं अल्लाह बोलते हैं। यहाँ की खुसूसियत है, अली को या से बोलना, आज को याद बोलते हैं, आम को याम बोलते हैं, तो अल्लाह को भी अल्लाह बोलते हैं। इन चीज़ों की जो पुरानी कमजोरियाँ हैं, इसकी इस्लाह कैसे होगी? इसकी इस्लाह अगर हम नहीं करेंगे और अपनी औलाद को नहीं करवाएंगे तो फिर तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा और माहौल हमारा बदलेगा नहीं। और माहौल बदलेगा नहीं, हमारा पढ़ करके फ़ायदा महदूद अपने तरफ लेना है। मिशका शरीफ की ये आखिरी हदीस आपको बता रही है कि भाई अपने तक महदूद मत रखिए, अच्छाई का हुक्म कीजिए और अच्छाई का हुक्म करने के लिए अच्छाई को जानिए, बुराई से रोकिए, बुराई से रोकने के लिए बुराई को जानिए। बुराई किसका नाम है? ईमान लाने का मतलब है कि तकल्लुम में बहुत सी बातें हैं, ईमान पहले लाने की बात है। तो ईमान की बात लोगों को बताएं, एक जिम्मेदारी के साथ ये किताब खत्म हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको इस जिम्मेदारी को समझने की तौफीक अता फरमाए। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको भी, आज जो अभी तालिबात ने अभी ख़त्म किया, ये बहुत ही खुशनसीब वो बच्चियाँ हैं, उनके माँ बाप भी बहुत ही खुशनसीब हैं जिनकी बच्चियों ने इतनी सारी हदीसें पढ़ ली, उसका शरीफ पढ़ा। अल्लाह आदमी हैरान है, कहाँ ये सब कहाँ मिलेगा भाई? पूरे इलाके में घूम के चले जाइए, हमको तो लगता है इस इलाके में शायद कहीं मिशकात की तालीम होती है, कहीं होती नहीं है। और खाली मिशकाती में दिख रही है, खाली ले दे के जो मिशकाती थोड़ी पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे मिशकात को समझने के लिए अन क्या चीज़ है, दूध क्या है, हर दशा क्या है, मौलाना सब कुछ बताया होंगे शुरू में। और उसके बाद इनको हदीस को समझने के लिए उससे पहले नहव है, तो उसके पहले सर्फ है, वो समझने के लिए इसमें कितने मसाइल शुरू आए हैं। मसाइल समझने के लिए फ़िक़्ह है। अब बार बार इबारतें ऐसी आती हैं कि उसका नुक्ता बयान किए बगैर वो उस्ताद आगे बढ़ नहीं सकता, उसमें आदमी डूब जाता है। ऐसी खूबी अल्लाह के रसूल पाक जामिउल कलीम थे ना, जामिउल कलीम थे, एक जुमला में पूरे समुंदर को उसमें समझिए। तो उसको जब तक उस्ताद बयान नहीं करेगा तो कोई इत्मीनान नहीं होगा। हम इतना उम्दा कलाम हो, हम कैसे छोड़ के चले जाएंगे? इनके पीछे बहुत सारी मेहनतें की हैं। आज ये चंद मिनटों में उन मेहनत का तस्करा भी नहीं किया जा सकता है। जो मेहनतें इन्होंने की है और इनके इशातज़ा ने की है, इनके मुआइन ने की है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए, यही हम लोग दुआ करते हैं। और हम लोगों को भी अल्लाह ताला सब जोड़ के रखे। और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की जो दुआएं फरमाई थी, मौलाना वो हदीस पढ़ी है, कितना अच्छा लगा। नज़्ज़लल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती, अल्लाह ताला शख्स सब सवाब रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, मामूली बात है, हुजूर दुआ फरमा रहे हैं, उनको अल्लाह ताला खुश व खुर्रम रखे और सब वो सवाब रखे जिसने मेरी बात को सुना, उसके बाद वह हाफिज है, अच्छा एक बात है, वहाँ है फ़ा हाफिज है, उसके बाद है वाह, इसमें फ़ा है और वाव है ना। अब तो ये दोनों आता है, फ़ा भी अर्थ के लिए आता है और वाव भी अर्थ के लिए आता है, और सुमा भी अर्थ के लिए आता है। अब सुमा का अगर गुजर रहा है, याद रखिए, फ़ा जो होता है ना उसमें एकदम इत्तिसाल का माना देता है, और वाव इत्तिसाल इन्फिसाल का दोनों है, और सुमा एकदम इन्फिसाल का है। सुमा हाफिज़ अगर होता, उसका माना होता है कि फिर देख लेना 2, 4, 5, 10 दिन के बाद, महीने के बाद कभी याद कर लेना। सुमा में गुंजाइश नहीं है, वाव तक है। लेकिन वहाँ सुनने के बाद जिसने सुना फ़ा हाफिज़ है, उस पर फ़ा ले आया, फ़ा अगर इत्तिसाल का, इसलिए हम तफरीहन तर्जुमा करते हैं कि फ़ा के माने फ़ौरन, फ़ा हाफिज़ फ़ौरन याद कर लो। जिसने सुना, मेरी बात को सुना, समझा मक़ालती फ़ा हाफिज़ है, और उसको याद करने में देर नहीं किया, वह अद्दा, उसके बाद में जो अदा किया, ये किया और फिर पहुँचाया, वाह, फिर हिफाजत की, फिर दूसरे तक पहुँचाया, फिर दूसरे तक पहुँचाने में अगर वाव आ गया तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि फ़ा के बाद फ़ौरन पहुँचा नहीं सकता वो, लेकिन याद करने के लिए कौन रोकेगा आपको? फ़ौरन याद करो उसको। इसलिए कुछ हदीसें छोटी छोटी जहाँ तक हो सके मुमकिन बच्चियों को ज़बानी याद करनी चाहिए, भी मेरा पैगाम है। बालपुर में वहाँ पढ़ाते हैं मिशकातुल आसार और ये अल्फियतुल हदीस, तो 100 हदीस तक तो फर्ज था, उसमें कोई इनाम नहीं, याद नहीं करोगे तो पिटाई लगेगी। 100 हदीस में पता लगा इसमें कोई है कि नहीं है, और यहाँ 100 हदीस तक तो आपको याद करना है, एकदम बिल्कुल ज़रूरी है।
उसमें इनाम नहीं मिलेगा। नहीं याद करोगे 100 तो इकाई लगेगी, और 100 से ऊपर याद करोगे तो इनाम मिलेगा। किसी को किताब मिल जाएगी, किसी को कापी कलम, किसी को फला किताब मिल जाएगी। तो हर बच्चा कम से कम 150 का हदीस याद करके ज़माना में। तो कुछ हदीसें याद होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि मेरी बातों को सुना है, उसको याद किया। तो हम अपने को झांके कि हमको भी कुछ हदीसें याद है कि नहीं है। हम उलमाए किराम को बैठ के चाहें कि हम 1-2 हदीसें याद करें। अल्लाह के रसूल बहुत सारी दुनिया के लोग अखबार याद रखते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भी याद रखें। हाफिज है याद के सबसे पहले तो याद करें आदमी, तो इस पर भी अमल करेंगे तब ना वो सब सवाबी की जो दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हैं, वो दुआ के मुस्तकम कब होंगे, उसको याद भी करना होगा। और उसके बाद कोई पूछे ना पूछे, दूसरे के सामने अपना पटारिया खोल लीजिए, और आप नहीं खोलिएगा तो वो अपना खोल ही देगा, आप दुनिया की बात सुनाना शुरू कर देगा। कब नहीं इसके कि वो दुनिया की बात सुनाए, खेल कूद की आप अपने खोल लीजिए बयान, उसके देखिए जब तक सुनता है सुने, नहीं सुने बंद कर दीजिए। और नहीं तो ऐसा आदमी नहीं रह गया कि आप बोले कि मौलाना रिजवानुल्लाह साहब आज आपके पास आए हैं, आज वो कर हदीस सुनाइए, तो शायद ही कोई ऐसा मिल जाए दुनिया में, बहुत कम कि सुनाइए 2-4 हदीस सुनाइए, ऐसा मिलता नहीं। आप खुद जाइए जाकर सुनाना शुरू कर दिए कि भाई जरा तुम सुनो एक बात, ऐसे ही करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती से काम में डालना पड़ेगा। अब तो ये वक्त आ गया है, तो दुआएं को मुस्तहिक होने के लिए ये है, उसके बाद उसको दूसरे तक पहुँचाए, ये पहुँचाने का भी अदा करना जरूरी है, तब जाके हम दुआओं को मुस्तहिक होंगे। अल्लाह का रसूल दुआ, हम अपनी उम्मत से कितने प्यारे हैं, जब हम उनकी दुआ करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला हम वो इन टूटी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।